اور دیکھیے یہ ہے ایپریکاٹ کا اندر کا گیری، یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، ابھی یہ فریش ہوتے ہیں نا، تو ایپریکاٹ فریش کھاؤ اور اس کا گیری بھی کھاؤ۔ اس کا گیری کا جو ٹیسٹ ہے نا بالکل کاجو جیسے ہوتے ہیں، ایک دم فریش، کرنچ کرنچ کرتے ہیں، ایک دم بہت ہی مزے ہوتے ہیں۔ دیکھیے چلو کرو نا، ایکسرسائز کم اور باتیں زیادہ کر رہے ہو تم دونوں، ایکسرسائز کرنا ضروری ہے، صحت کو فٹ رکھو۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ اوہ 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 دکھا دو اس طرح سے دکھاؤ، پھر ادھر پہلے فوکس کرو۔ اور دیکھیے ویورز، میں اچانک سے کل بیمار ہو گئی تھی نا، تو پھر میں گئی تھی چیک اپ کے لیے، پورا باڈی چیک اپ کیا تھا ہیلتھ کا، تو میرے ہیموگلوبن بہت کم ہوئے تھے اور مجھے ڈپریشن کا بھی امکانات نظر آئے ڈاکٹروں کو، تو پھر مجھے ڈاکٹر نے یہ والا انجیکشن کرنے کو کہا آئرن کے لیے، تو پھر ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کو کہا تھا نرسنگ ہوم میں۔ تو میرا ہسبینڈ تو میڈیکل کا سب کچھ آتا ہے ان کو کرنا، تو یہ سب کچھ کام ہم گھر میں ہی کرتے ہیں، جیسے ان 3 عورتوں کو بھی ہم نے بہت خدمت کیے تھے اللہ کے فضل سے۔ تو آج مجھے یہ ابھی گھر میں ہی بازار سے آ کے نہا کے دھو کے اور گھر میں ہی یہ اقبال صاحب مجھے انسرٹ کر رہے ہیں، اور وہ دکھا دو دوائی میرا، اور وہ یہاں پہ ہینگ کیا ہوا ہے میرا آئرن کا، اور یہ مجھے ابھی ڈالیں گے میرے جسم کے اندر، اور مجھے بہت ڈر لگ رہے ہیں، سوئی سے مجھے بہت ڈر لگتی ہے، لیکن اقبال صاحب کا ہاتھ بہت ہلکا ہے، اور فرین جان آفرین جان سب میرے آس پاس ہے، تو اسی لیے مجھے تھوڑا وہ ملتا ہے ہمت، اور باقی بس دعا کیجیے آپ لوگ کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، اور باقی تو بس زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں ڈیتھ گیوز نو کیلنڈر، تو اسی لیے، لیکن میرے گھر میں نرسنگ ہے بہت اچھا، اقبال صاحب کو سب کچھ کرنا آتا ہے A to Z، دوائی کے بارے میں ہو یا انجیکشن لگانا ہو، سلائن چلانا ہو، آکسیجن لگانا ہو، ہر ایک چیز لگا دیں گے، ہر ایک چیز اقبال صاحب ان کاموں میں ماہر ہے، تو باقی بس ٹریننگ کی ہوئی ہے میں نے، اللہ تعالیٰ۔ اقبال صاحب نے جاب بھی کیا ہے دلی ٹریننگ کیلاش ہاسپٹل میں، اپولو میں، اسکاٹس اپولو میں، اسکاٹس سینٹ میں۔ اسٹیفن میں، اچھا، آپ خود تھوڑا سا گنگا رام میں، ریفرنس دیجیے۔ پھر سرکاری نوکری بھی، بہت ساری اسٹوریز ہے انشاءاللہ، میری ان لاز نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا۔ باقی ابھی میرا نس نا بہت ہی وہ ہے، تھن ہے، میرا نس ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کہہ رہے دن نا وہاں پہ جب نہیں ہے، اب میں یہاں کرنے کولکتہ کے جب بعد گئی تھی تو پھر وہاں وہاں پر سے لاؤں گا۔ حاجرہ جی نے بہت ہی بدسلوکی کی تھی ہمارے ساتھ، حسد سے سب، تب ایسا ہمارے ساتھ پیش آئے ان فیملی نے، کچھ جنات ہے بول کے ہمارے اوپر، تم لوگ کا یہاں رہنا جان پہ بان آئیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت بھی میں کولکتہ سے آ کے، تب سے مجھے ڈپریشن ہو گئے، کیونکہ ان کے حرکتوں کو دیکھتے ہوئے، کچھ دوسرے وہاں بند بھی کرنے ایک وہی منٹ، تھا غیبت کا سلسلہ۔ ابھی بہت ساری کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، وہاں سے آ کے بھی میں بہت بیمار ہو گئی تھی، پھر میرا نس ملنا بہت مشکل ہے، نس نہیں ملتے ہیں میرے، اور پھر بھی یہ تو میں گھر پہ ہوں تو مزہ ہے، گھر پہ سب ٹریٹمنٹ ہو جاتے ہیں۔ آج تو اتنا کرنے بھی نرسنگ ہوم میں جائیں گے تو پھر بہت چارجز کرتے ہیں، لیکن
चार्जेस का तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। डर मतलब अजीब लगता है फिर बच्चों को छोड़ के जाना इससे घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा होगा डर, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है ना, थोड़ा सा। मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। इंजेक्शन से बहुत डर लगता है मुझे। हो गया प्रिक? हाँ? हो गया? हाँ हो गया। एक मिनट ठहरो। कैनोला एक रहा कैमरा से कोई फायदा नहीं है। क्या मुझे ऐसे हाथ रखना है? एक सेकंड के लिए अरे ज़्यादा नहीं। मैं इस पे करूँ यार, इस पे कर असलम हो थोड़ा डूब गया लास्ट मिनट। नहीं जाएगा ना? जब मैं बीमार होती ना मुझे बहुत दिल दुखता है। वो जो औरतें थी ना वो लोग ग़ैबत की वजह से सब एकजुट होते हैं। मेरे साथ किसी ने नहीं दिया है। बहुत इन लोग ने मुझे बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है। इन्हीं की करतूत की वजह से मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ। मुझे बीपी भी चढ़ गया है। अल्लाह इनको कभी नहीं बख्शेंगे, इनको कभी नहीं बख्शेंगे। अल्लाह ताला इनको कभी नहीं बख्शेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मेरी माँ की उम्र के लोग हैं ये सब लोग, फिर भी इनको जरा सा भी एहसास नहीं। ये ग़ैबत इतने करते बाजू नहीं हिलाना हैं और दूसरे आधा घंटे चचेरे तक के लिए। भाई भी मेरे पास इतने। मुझे जब ऐसा मैं बीमार होती हूँ ना फिर मुझे ख्याल आता है चचेरी बहन लोग भी इतने बुरे, कहने सो कॉल्ड असली नहीं है वो सब मेरे, और चचेरा भाई और ये लोग मिल के इतना ग़ैबत किए, इतना ग़ैबत किए, इतना ग़ैबत किए। बाद में सब ग़ैबत करने वाले एकजुट हो गए और मुझे ही सुनाने लगे। जो मुझे कुछ चीज़ पता ही नहीं उसके बारे में मुझे सुना रहा है। कोई कुवैत में रहने वाली औरत एक, वो मुझे सुना रहे हैं ऐसा किया, ऐसा हुआ तेरे उसने। हम सोने के टॉयलेट में टट्टी करते हैं, करो सोने के टॉयलेट में टट्टी भी करो और सोने के टॉयलेट ये बाजू सोने जाना के हिलाना प्लेट नहीं, में ऐसे ऐसे बैंड नहीं करना ऐसे, खाना भी क्योंकि खाओ। नीडल यहाँ पे ऐसा करोगे आर पार हो जाएगा। फिलहाल ए साले मैं हूँ ना यहाँ पे, ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे यहाँ पे, बंद कर दो। क्या? अब मेरा ये जा रहा है, इसमें ये भी दिखा दो। एक घंटे में पूरा होना चाहिए। और इधर अब फिर मुझे इतना डर लगा था, मुझे लगा था सुई अभी डाला नहीं डाला, मैं चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक सुई तो इंसर्ट हो चुकी थी। तो इसीलिए एक बार सबका हाथ बहुत हल्का है। और बाकी बस मुझे दिल बहुत दुखता है, दिल बहुत दुखता है, क्योंकि हम इतने ख़ानदानी लोग हैं। हमारे मम्मी पापा कितने मतलब दीनदार के साथ साथ बहुत ही ख़ानदानी अमीर भी हैं हम लोग। हमने बचपन से ही सब कुछ देखा हुआ है, इसीलिए हमारा रहन सहन सब कुछ अलग है। और ख़ासकर स्पेशली तो मेरे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही है। बाकी जो लोग हैं सो कॉल्ड वो कनाडा में रहे, ताइवान में रहे, या फिर बड़े बड़े शहरों में रहे, बड़े बड़े कंट्रीज़ में रहे, लेकिन उनके अंदर वो नज़ाकत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपना मेकअप वेकअप करने से फुर्सत नहीं मिलता है। लेपा पोती करने में ही उनका ज़्यादा वो होते हैं टाइम। मेरा दिल बहुत इन्होंने दुखाया है, बहुत दुखाया है। तो अल्लाह ताला इनको दिखा भी रहे हैं, इनको लंबी उम्र के साथ साथ इनको रूहानी तकलीफ़ है, इनको पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो बहरहाल मेरा तो यूट्यूब जो भी मुझे देख रहे हो, मेरे दिल में उन सब के लिए प्यार है, मोहब्बत है। बाकी हाँ कुछ लोग हैं फिर मैं तुम्हारा भैया हूँ बोल के भैया
भैया के नाम पे सैयां बनने आ रहे थे और बहुत ही गंदे कैरेक्टर के लोग भी है। कभी वक्त आने पे बताऊंगी, सोचती हूँ नाम से लेके उसका भी राज फाश कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं, आखिरत की जो जलालत है वो असली जलालत है, वहाँ पर उस बंदे का पिटारा खुलना चाहिए। और जितना भी वो दूसरों को बदनाम करते हैं, पहले वो अपने गरीबान में झांक ले कि वो खुद कितना बदनामी और कितना वहशाना आदमी है। बाकी मैं अपने हस्बैंड को ये सब बात नहीं बताती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर कश्मीर आना भी मुहाल हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर कुछ सुनते हैं ना, मतलब किसी पे जुल्म हुआ है या कुछ, तो फिर लोग बख्शते भी नहीं हैं। बहरहाल अभी मेरा ट्रीटमेंट घर में ही चल रहा है, मेरा नर्सिंग घर पर ही है, और किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है तो मेरे हस्बैंड जाते हैं मदद के लिए। किसी को प्रेशर, आज तो लोगों को प्रेशर भी चेक करना नहीं आता है, बाकी सब कुछ आता है। इतना एक काम सुई बुई लगाना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं आता है। और बाकी जो है बस नीयत साफ़ रखिए, नीयत अच्छा रखिए, ऐबत गेबत मत कीजिए और किसी पे तहमत मत लगाइए। और एक यहाँ पर एक तो कुछ है, एक अजीब गरीब एक बाहर रास्ते पे ना, वो भोंकता भी नहीं है, काटता भी नहीं है, पता नहीं उस जानवर का क्या नाम है। हो गया? तो और देखिए अभी भी मेरा चल रहा है, अभी लगेंगे 1 घंटा जितना इसको पूरा स्लाइन, अभी 1 घंटा लगेंगे। और इंसानी, जैसे मैं कभी बीमार भी हो जाती हूँ, ज़्यादा कभी कम, लेकिन दुख मुझे इस बात की होती है, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। बाकी मुझे किसी की याद नहीं आती है, सिवाय मेरी एक सिस्टर है फ़ातिमा, उसका मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी लेडी थी और बहुत ही अपने माँ बाप का बात मानने वाली। और माँ को तो उसने इतना मतलब खुश लाया है ज़िंदगी में, और हमेशा माँ का बात और माँ का डांट वही सुनती थी, बाकी लोगों का तो क्या कहना। तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो उसकी मौत भी बहुत आसान मौत हुई, तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब अदा करे और जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए। और मैं उसको बहुत ही, जब भी मैं उसको सवाबी इरसाल भेजती रहती हूँ और दुआ में भी मेरे लब पे उसी का नाम आते हैं। तो बस यही, फिर दूसरे सौ कॉल्ड लोग उसको मोहब्बत भी नहीं करते थे, उससे मतलब हर वक्त उसको दबोचना, हर वक्त उसको नहीं, बिल्कुल एक सौतेला व्यवहार करते रहते थे हर कोई। और उसका एक लौता ही बेटा है अमान, और उससे मुझे बहुत दुख है, क्योंकि बचपन मेरा उसी के साथ गुज़रा। उस और मेरे उम्र में इतना फासला भी नहीं है, थोड़ी बहुत फासला है। और जैसे हम 3 लोग बहुत ही बचपन से खेलते कूदते थे। एक सो कॉल्ड औरत का बेटा अहमद, अभी तो वो किसी के घर का घर जॉय बन गए हैं, घर पेट गए हैं वो। और वो और मेरे दरमियान तो सिर्फ 1 ही साल का फ़ैसला है, मैं उससे 1 साल बड़ी हूँ। और दूसरा अमान है, उससे मैं कुछ साल बड़ी हूँ। तो लेकिन बचपन हमारे ऐसे तीनों के साथ गुज़रे हैं, लेकिन अभी वो लोग मेरा दिल बहुत दुखाते हैं। और ख़ासकर अमान से तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं था। तो उसने तो मेरे साथ क्या हुआ, हजरत जी ने क्या मेरे साथ सलूक किया, उसको सब चश्मदीद गवाह है। लेकिन वो बेगन की थाली है, बस उसको अपना मतलब निकालने के लिए बेचारे को बहुत मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है। उसको भी बहुत बीमारी है, कमर में दर्द है,
बेचारा उसको दर्द है, लेकिन फिर भी उसको कमाने के लिए जाना पड़ता है। 2 बेटियों का बाप वो भी है। तो जब वो बच्चों का बाप नहीं था तो एक मर्तबा उसने दिल भी बहुत दुखाया था मेरी बेटियों का। तो अल्लाह ने उसको भी 2 बेटियों से नवाजे हैं। अब उसको भी पता चलेगा जब अपने बेटियों पे जब कोई अजीब हरकत करेंगे तो कैसा दिल दुखता है। हर एक इंसान पे आता है, किसी को कुछ आप दिल दुखाओगे ना, वो घूम फिर के आ जाता है। अगर एहसास ना हो तो फिर जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अमान से मुझे ये सब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, और उसके माँ से भी। और बस वो भी फिर उन्हीं औरतों की तरह होने लगे। उसको भी बातें सुनना, बातें कहना शायद पसंद होंगे, इसीलिए उसने उनको चुना। तो मेरे लिए उसने इंसाफ नहीं किया। तो बहरहाल मुझे तो कोई चट्टी नहीं है, मुझे इनसे क्या लेना है, क्या देना है। अलबत्ता मुझसे ही इनको कुछ मिला होगा। मुझे तो इनसे ना कुछ चाहिए था, ना कुछ लालच था, ना कुछ था। मैं तो मिलती भी थी तो प्यार से मिलती थी, और कुछ हदिया भी लेके जाती थी तो प्यार से लेके जाती थी। उसके वापसी में मैं कुछ भी चीज़ का उम्मीद करती भी नहीं थी, और करके भी कुछ फ़ायदा भी नहीं था। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे, लेकिन कभी भी इंसान को अपना पिछला नहीं भूलना चाहिए। और गुनहगार तो सब हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे वो सबको पता है। अपना गुनाह अगर खुद को याद नहीं रहेगा तो फिर वो सबसे बड़ा बदकिस्मत लोग होंगे। और अपने गुनाहों को याद करके तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, और नियत को दुरुस्त रखें, और नियत को साफ़ रखें, ऐबत गैबत न करें, हसद न करें, और सही मायनों में दीन इस्लाम के उसूलों पे चलें। दिखावा के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं। रियाकारी करोगे, घर में कुछ और बाहर कुछ और, ये तो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे आप घर में हो वैसे आप बाहर भी रहो, जैसे आप बाहर हो वैसे आप घर में भी रहो। और बीवी बच्चों के लिए थोड़ा अलग सा स्पेस होता है, और बीवी को तवज्जो दो, खासकर वो बीवी जो डिमांडिंग ना हो, जो सीधे साधे हो, जो कनात करते हो, फजूल खर्चे नहीं करते हो, महंगे चीज़ें के पीछे नहीं दौड़ते हो। सादा सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी ज़िंदगी कैसे थे। अगर आप खुद को दीनदार कहते हो तो इन चीज़ों पे चलने की कोशिश करो, और दूसरों की बातें मत सुना करो। और ग़ीबत नहीं करके खामोशी में भी बहुत सारे गुनाह करते हैं, इखलाक में कमी होते हैं। कभी कभार बात भी करना होता है इंसान को, इखलाक जिसको कहते हैं। बाकी तो सब के अंदर खामियां होते ही हैं। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत नसीब करे, और हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाएं। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरा ये स्लाइम भी अभी थोड़ा टाइम है, तब तक ख़त्म भी हो जाएंगे। और दुआ में याद रखिएगा अगर हो सकता है। बाकी तो मैं दुआ के लिए किसी को कहूँगी नहीं, क्योंकि आज अपने अपनों को याद नहीं करते हो तो भला कौन किसको कहेंगे और वो दुआ में याद रखेंगे। ये तो नामुमकिन सी बात है। अदरवाइज़ मुसलमान उम्मत एक दूसरे को, पूरी मुसलमान कायनात जो शिरक और बिदअत ना करते हो, उन सब को दुआ में याद रखना तो चाहिए। और इंशाअल्लाह रहमान हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और ये दुनिया आसान और आखिरत कामयाब और जन्नतुल फिरदौस में हम सब की एंट्री हो जाए, जो शिरक और बिदअत ना करता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और बस मैं आज अपने छट पट वाली लॉबी में हूँ। छोटी सी मेरी लॉबी है, मैं यहीं पे होती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा सोफ़ा लगा हुआ है। मैं इस पर बैठ के हैंडी गैस पे बनाती हूँ जो भी बनाने का मन करे, और बाकी तो दूसरे किचन में भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे कमर में थोड़ी बहुत दर्द होती है, तो इसलिए मैं यहीं पे आप लोग से गुफ्तगू करती हूँ। तो देखिए, आज मैं गोल गप्पा बनाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को गोल गप्पा खाने का बहुत ही शौक़ है। तो फिर बाहर का मैं खाती नहीं हूँ,
باہر کا تو کھانا एकदम लास्ट स्टेज है क्योंकि बहुत ही गंदगी से बनाते हैं। तो मैंने इमली को रात भर मैंने पानी में सोक करके रखा था, फिर अभी सुबह मैंने उसको मैश करके उसका लिक्विड निकाला इमली का, फिर उसमें ठंडा पानी ऐड किया और जो इसका अपना मसाला है इंग्रेडिएंट्स वो सब मैंने इसमें ऐड किया। बिल्कुल होमली मेड मसाले हैं, जैसे ज़ीरा पाउडर हुआ, मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ज़ीरा पाउडर ऐड होते हैं इसमें। हेलो, व्हाट इज़ रॉन्ग? ओके, तो ज़ीरा पाउडर हुआ, ब्लैक पेपर हुआ पाउडर थोड़ा सा, और रेड चिली पाउडर सिंपल वाला, कलर्ड वाला नहीं। और उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और वाइट नॉर्मल सॉल्ट, और पुदीना पीस के और धनिया पीस के, अभी धनिया इसमें डालना बाकी है। और बस फिर ढेर सारा प्यार और ढेर सारा प्यार ही का ज़रूरत है। जो भी हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे उनमें ढेर सारा प्यार का डालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये जो पानी है जो अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पुदीना और मिर्च का वो आ रहा है, तैर रहे हैं पानी में। तो इसको अभी इस तरह से अच्छे से मिला के फिर अभी खाने के टाइम इसको प्रिपरेशन करेंगे, ऊपर से धनिया छिड़केंगे। तब तक के लिए मैं आलू, चना और वो सब स्टफिंग्स की तैयारी करूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आज आप लोग से ढेर सारी बातें थोड़ी बहुत करनी है, वो भी कर लूँगी। तो आज संडे भी है और कश्मीर का संडे मार्केट जो है वो बहुत ही फेमस होते हैं। तो वहाँ पे बहुत भीड़ होते हैं। मैं तो जाती नहीं हूँ कभी भी, कभी जाती हूँ साल में 2-3 बार, अदरवाइज़ बहुत रश होते हैं। तो इसीलिए तो आज हो सका तो जाऊँगी, फिर आप लोग को भी ले चलूँगी, ठीक है ना? ओके, विल सी यू लेटर। और देखिए आलू को एकदम ही मैश भी नहीं करना है, हल्का हल्का सा दरदरा रखना है इस तरह से, फिर मज़ा आता है खाने में बहुत। फिर इसमें मैं चना ऐड करूँगी, ये इसको भी थोड़ा कूटूँगी, इसको भी थोड़ा कूट के थोड़ा वो करूँगी। देखिए ये गोल कबाब प्रिपरेशन हो चुके हैं और ये मेरा स्टफिंग है। अब मैं इसमें स्टफिंग भर दूँगी, फिर बच्चे लोग भी खाएंगे, जिसके नसीब में हो उसको भी देंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो इस तरह से गोल कब्बा हमारा रेडी हो चुके हैं। अब देखिए मेरे दोनों बच्चियाँ गोलगप्पे खा रहे हैं, मैंने इनको भर के दिया, बाकी ये इनके फ्रेंड्स के लिए है, ये मैंने इंसर्ट करके रखा, इसमें मैंने स्टफिंग भर के रखा, सॉरी। तो ये लोग खा रहे हैं गोलगप्पे। तो देखिए मज़े मज़े वाले गोलगप्पे। पानी को थोड़ा इस तरह शेक कर लो, और घर का ही पानी है, बिल्कुल एकदम हाइजीनिक बनाए हैं। और खाओ बच्चा, कैसा लगा जिगर मेरा? बहुत टेस्टी, हम सब। तो ये है गोलगप्पा हमारा मज़े मज़े वाला, और बच्चे लोग खा रहे हैं। और देखिए ये देसी मुर्गी लाए हैं, ये वो फार्म का नहीं होता है, ये देसी मुर्गी होता है। तो फिर ये 3 किलो लाए हैं अभी। तो इसका आज एक उम्दा सा बिरयानी बनाऊंगी, और बाकी क्या बनेगा देखती हूँ। और ये देसी मुर्गे में ना जल्दी नहीं पकता है, इसको थोड़ा सीटी 2-4 देना पड़ता है, क्योंकि इनकी हड्डियाँ बहुत ही मज़बूत होते हैं और मीट भी बहुत मज़बूत होते हैं। फार्म का चिकन अब तरह तरह के आज देखते हैं सोशल मीडिया पे, ये होते वो बीमार होते हैं, ये होते हैं, इसलिए दिल नहीं करता है। अब इसीलिए इससे बेहतर है कि ये देसी मुर्गी खाएंगे तो वो अच्छा है।